नमस्कार নিউজ টুডে इंडिया আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ এবং দীপ্ত। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই নিউজ টুডে इंडिया লাইভ আপডেটে। আজকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর নিয়ে আমরা আজকে হাজির হয়েছি। প্রথমত যে বিষয়টা আপনাদের জানাবো, আপনারা সকলে জানেন যে গতকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং আজকে উত্তরকন্যায় যে প্রশাসনিক বৈঠক ছিল, যেখানে আলিপুরদুয়ার এবং পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার যে প্রশাসনিক বৈঠক ছিল, সেই বৈঠক থেকেই তিনি সরাসরি রাজ্যের যে মুখ্য সচিব রয়েছেন তাকে নির্দেশ দেন যে 15 নভেম্বর থেকে কিন্তু সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খুলে দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পাশাপাশি পরিষ্কারকরণ তার কর্মসূচি কিন্তু নির্দেশ তিনি সেখান থেকে দেন। কিন্তু যেহেতু 15ই নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মদিন রয়েছে এবং সরকারিভাবে ছুটি রয়েছে, সেজন্য 15 তারিখ নয় বরং 16 তারিখ থেকে হচ্ছে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং সেখানে 9 to 12 রীতিমতো শিডিউল অনুযায়ী, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের যে শিক্ষা দপ্তর রয়েছে সেই শিক্ষা দপ্তরের একটি গাইডলাইন অনুসারে কিন্তু করোনা বিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে যাচ্ছে এবং সেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে ক্লাসে আসবে কিনা অথবা অল্টারনেট ডেতে আসবে কিনা এ বিষয়ে কিন্তু এখনও শিক্ষা দপ্তর কোনো প্রকারের সিদ্ধান্ত নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই তারা কিন্তু এই বিষয়ে তৎপর হয়েছেন এবং পাশাপাশি তারা যে বিষয়টা হচ্ছে জানাচ্ছেন যে এই বিষয়ে তারা রোস্টার তৈরি করে হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুলবেন এবং পাশাপাশি এই প্রায় 20 মাসের যে করোনা লকডাউন, সেই করোনা লকডাউনে বিভিন্ন স্কুলের যে পরিকাঠামোগত অচলাবস্থা রয়েছে বা যা পরিকাঠামো নষ্ট হয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আবার পুনরায় সংস্কার করবার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তৎপরতা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেন সেটা হচ্ছে যে এই করোনা লকডাউনে রাজ্যের সবথেকে বেশি, রাজ্য তো বটেই, গোটা দেশের সঙ্গে সবথেকে বেশি যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না যাওয়ার কারণে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী না হওয়ার কারণে তাদের পড়াশোনার প্রতি যে মনোযোগটা, সেই মনোযোগটা কিন্তু যথেষ্টভাবে কমে গেছে। তার পাশাপাশি যে বিষয়টা তিনি বলেছেন যে কোভিড প্রোটোকল মেনেই, যেহেতু করোনা এখনও যায়নি সেই জন্য কোভিড প্রোটোকল মেনেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুলতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রশাসনিক দপ্তরের আধিকারিকদের শুরু করে শিক্ষা দপ্তরের যারা আধিকারিক রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু বিস্তারিত তাদের হচ্ছে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কিন্তু তাদের একটা সিস্টেম বা একটা গাইডলাইন কিন্তু তিনি তৈরি করতে বলেছেন। রাজ, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য হিন্দিতে যারা আমাদের দর্শক শ্রোতা রয়েছেন তাদেরকে হিন্দিতে বিস্তারিত জানাবার জন্য আমাদের প্রতিনিধি রাজ রয়েছেন। আমি রাজকে অনুরোধ করবো সে বিষয়ে বিস্তারিত জানবার জন্য। बिल्कुल सही जब्बारदा, आपको बता दें अंत भला तो सब भला और आखिरकार 20 महीने बाद वापस जो है पश्चिम बंगाल में स्कूलें खुलेंगी। ऐसे ही आज आप सभी जानते हैं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से उत्तर बंग सफ़र में हैं और अगले कुछ दिन भी उत्तर बंग सफ़र में रहेंगे। लेकिन आज जब उत्तर कन्या में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब मुख्य सचिव को निर्देश करते हैं कि जो 15 तारीख से जो है 15 नवंबर से राज्य की सभी स्कूलें खोल दी जाए तथा 15 नवंबर को जो है सिद्धू कानू का जो है जन्मदिन है, उसी कारण जो है उसको 16 नवंबर से जो है राज्य की सभी स्कूलें खोलने का निर्देश सीधे मुख्य सचिव को दिए हैं। तथा इसके साथ ही बता दें आप लोगों को अभी जो है फिलहाल गाइडलाइन तैयार होंगी और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इन सब संस्थानों को खोलने का आदेश दिया गया है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। साथ ही साथ जो गाइडलाइन है, किस रोस्टर के अनुसार जो है स्कूलें खुलेंगी, किस तरह से स्कूलें चलेंगी, इन सब सारे विषयों को छानबीन करने के लिए जो है मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ पिछले लगभग 2 साल से यानी कि 20 महीने से जो स्कूलें बंद थी, स्कूलों को जो रेगुलर करने के लिए जो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो सामानों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब सही परिकाठामो जो होता है यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है वह पुराने तौर पे है कि नहीं, पुराने पहले जैसे थी वैसी है कि नहीं, इन सब चीज़ों को छानबीन करने के लिए जो है मुख्य सचिव को निर्देश करती हैं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तथा बता दें आपको सबसे ज़्यादा जो इस कोरोना महामारी का असर पड़ा वह जो है एडुकेशन सेक्टर पे, एकदम शिक्षा प्रतिष्ठान पर। और मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद जो है हर महल में आप शिक्षक महल बोलिए, छात्र महल बोलिए, गार्जियन महल बोलिए, राजनीतिक महल बोलिए, विभिन्न जो तरह के जो है आंदोलन भी इस स्कूल खोलने को लेकर विभिन्न राजनीतिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आंदोलन भी हुई थी कि स्कूलों को फाइनली खोल दिया जाए। और इस घोषणा के बाद, मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद सभी माहौल में जो है एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वापस से जो है छात्रों के अंदर भी जो है फिर से जो है उत्सुकता जागी है कि लगभग 20 महीने बाद वापस स्कूल जा पाएंगे और वापस स्कूल कर पाएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि क्लास 1 से लेकर क्लास जो 9 तक, क्लास जो 8 तक है, इस
क्लास की छात्रों के लिए अभी तक फ़िलहाल जो है स्कूलें नहीं खुलेंगी और इस विषय में भी बाद में जो है नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो निर्देशिका जारी की गई है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक तथा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब प्रतिष्ठानों को खोल दिया जाए अगले 16 नवंबर से। और उसके बाद जो है जो भी इस विषय में लेटेस्ट अपडेट आएगा, लेटेस्ट खबर आएगा, अवश्य हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस घोषणा के बाद हर माहौल में, छात्र माहौल बोलिए, गार्जियन माहौल बोलिए, शिक्षक, हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे शिक्षक हैं जिन्होंने यह जो सिद्धांत लिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा इसको वेलकम कर रही थी, स्वागत बता रही थी। और इस विषय को लेकर लेटेस्ट क्या अपडेट है जबरदस्त आप थोड़ा सा बताइए जी। क्लास 1 से लेकर जो क्लास 8 तक फिलहाल जो ये क्लासेस हैं इन क्लासों को बंद रखा गया है तथा 9 से 12 तथा किस तरह से रोस्टर तैयार होगा, किस तरह से जो कोविड-19 की जो विधि निषेध है उस सबको किस तरह से पालन किया जाएगा, इस विषय में थोड़ा विस्तार बता दें। राज, सबसे पहले तो ये बात है कि देखो, जैसे आप जानते हो कि जो 18 अबव है उन लोगों में से खास करके बंगाल के जो जनताएं हैं ज़्यादातर का सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज हो चुका है। लेकिन रहा सवाल कैसे कि एक आशंका की जा रही थी कि थर्ड वेव नवंबर में आ सकता है, तो इसीलिए नवंबर का फर्स्ट वीक जैसे कि विज्ञानियों ने, डॉक्टरों ने कहा था। तो अभी दिखाई पड़ रहा है कि ये पूजा सबसे बड़ा जो उत्सव, बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है दुर्गोत्सव, इसमें भीड़ भड़क्कम के साथ, क्योंकि तकरीबन 20 महीना हम लोग कोरोना के लॉकडाउन में रहे और बहुत सारे आदमी जो है वो घर बंदी रह के जो ज़िंदगी का जो जायज़ा या मज़ा जिसको कह सकते हैं नहीं ले सके। लेकिन इस बार उभर के इस कोरोना महामारी को चैलेंज करके लोगों ने लेकिन बाहर आए, उभरते हुए सैलाब की तरह बाहर आए और पूजा में ये किया। और ख़ास करके आप देख सकते हैं कि बूढ़े से लेकर बच्चे, जवान, सब कोई इस पूजा का आनंद उपभोग उठाएं। और साथ ही साथ देखा गया है कि जब कोई एक पैंडेमिक सिचुएशन आता है तो एक बात आप याद रखिएगा कि एक जिसको कहा जाता है कि एक ऑटोमेटिक एक इम्यूनिटी सिस्टम तैयार हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बच्चे जो है खास करके 18 बिलो है उनमें सेरो पॉजिटिव कुछ पाया जाता है, लेकिन असर जो है कोरोना का इस वायरस का उतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए ये एक बहुत आशा की किरण लेकर आया है कि सेरो पॉजिटिव होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं या फिर कोरोना से वो इफेक्टेड नहीं होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि बिलो 18 जो है उन लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होने के कारण, रहा सवाल कि जो कोमॉर्बिडिटी से गुजर रहे हैं, बच्चे भी हो या जवान भी हो, उसको तो असर होना ही है। लेकिन जो कोमॉर्बिड नहीं है उसका इम्यूनिटी इस तरह से ग्रो कर गया है कि वो लोग इस कोरोना का जो वायरस है इसके साथ चैलेंज लेके, इसके साथ लड़ाई करके अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए एक आशा का किरण है कि थर्ड वेव, जैसे कि केंद्रीय सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्रक है और वहाँ के जो वरिष्ठ जो साइंटिस्ट हैं, खास करके एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि थर्ड वेव आने की आशंका बहुत कम है इंडिया में। लेकिन तब भी इसको बरकरार रखते हुए, कोविड का सारे प्रोटोकॉल्स इसको मानते हुए आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 15 तारीख से, लेकिन 15 तारीख बिरसा मुंडा का जन्मदिन है इसलिए उस दिन सरकारी छुट्टी है। 16 तारीख से 16 नवंबर से सभी स्कूल प्रतिष्ठान क्लास 9 से लेकर के 12 तक और उसके ऊपर में जो होता है ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी लेवल या PhD लेवल के जो प्रतिष्ठान होते हैं वो सब खोल दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा दफ्तर को, उच्च शिक्षा दफ्तर को एक निर्देशिका दिया गया है आज, जैसे कि हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, हम लोग को इत्तला किया गया है कि वो लोग एक गाइडलाइन तैयार करेंगे। मानिए किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट है तो 1000 स्टूडेंट को एक दिन में ही स्कूल रोस्टर के माध्यम से या अल्टरनेट डेट में किया जा सकता है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि पूजा से पहले ही मुख्यमंत्री और खास करके शिक्षा मंत्री जो हमारे ब्रात्य बसु हैं वो कहे थे कि अल्टरनेट मुख्यमंत्री जो अच्छा समझेंगे उस हिसाब से रोस्टर के हिसाब से किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस कोरोना से जूझने के लिए और खास करके कोविड प्रोटोकॉल माना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सबको साथ लेकर के शिक्षा प्रतिष्ठान को खोल दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप एक चीज़ देखे थे कि बहुत सारे ऐसे आदमी थे, खास करके जो शिक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े हैं शिक्षक या शिक्षाकर्मी जो हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे, कुछ परसेंटेज थे जो कि आपका इलेक्शन के टाइम में जो कोविड का टीका वो नहीं लिए थे। ये पूजा के पहले ही हम लोगों ने देखा कि शिक्षा दफ्तर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अगर एक भी आदमी, एक भी टीचर, एक भी शिक्षाकर्मी रहे जो कि कोविड वैक्सीन नहीं है, उसका स्टैटिस्टिक्स तैयार किया जाए और उन लोगों को सरकारी तरफ से एक तरह से निर्देश दिया गया था कि आप लोग कोविड का टीकाकरण कर ले, ताकि आप लोग जब इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तो आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर स्कूल खोलना या 16 नवंबर से स्कूल खोलने से पहले सरकार की तरफ से एक जो रास्ता तैयार करना धीरे धीरे, यानी आपको जो कह सकते हैं कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ टीचर्स इसके साथ इसके मतलब
जब स्कूल में जाएंगे तो इफेक्टेड ना हो, इसके लिए लेकिन एक मुहिम पहले से छेड़ा गया था और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि 16 नवंबर से स्कूल, अब देखना है कि ये 16 नवंबर स्कूल खोलने के बाद नतीजा क्या पहुंचता है। लेकिन इससे पहले एक बात तो और भी बता देंगे कि ये जो दुर्गा पूजा है, जानते हैं बहुत राशेस हुए होंगे और इस राशेस में कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो करने का एक साउथ 24 परगना में, हाँ साउथ 24 परगना बोलिए, हावड़ा बोलिए, उसके बाद बैराकपुर बोलिए और जलपाईगुड़ी कोच बिहार इस सब इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन करने का एक फैसला सोचा गया है। वो अपडेट हम लोग नेक्स्ट अपडेट में देंगे। रहा सवाल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का एक चर्चा हो रहा है, तो इसको सभी स्वागत किया है, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन लेवल में जब बच्चा जाता है तो उसका एक रुझान होता है कि हम स्कूल की तरफ जाएं, पढ़ाई करें। लेकिन ये 20 महीना का लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से एकदम डिटच हो गए हैं और गार्जियन के लिए ये एक मतलब क्या कहते हैं कि सरदर्द का एक बात हो गया। और खास करके आप कह सकते हैं कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं, जो पर्सनली कहीं कोचिंग करते हैं वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रतिबंधक था क्योंकि 50 से ज़्यादा आदमी कहीं और इकट्ठा नहीं हो सकते थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर में भी रेस्ट्रिक्शन पूरे से बंद कर दिया गया था। अब देखा जाए जो 16 नवंबर से जो इंस्टीट्यूशन खुलता है किस तरह से सरकार की तरफ से गाइडलाइन आता है और जो गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल सही जबरदस्त। आपको बता दें कि सेकेंड वेव खत्म होने के बाद पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो है स्कूलें खोल दी गई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में सेकेंड वेव देरी से ख़त्म होता है क्योंकि यहाँ सेकेंड वेव जो आती है वो भी देरी से और ख़त्म भी देरी से होता है। उसके बाद ही दुर्गा पूजा आ जाता है। ठीक दुर्गा पूजा के बाद देश की जो विभिन्न राज्य हैं जिस रास्ते पर चल रही हैं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर निकल कर जो है स्कूल खोलने का सिद्धांत ले चुकी हैं आज, और उन्होंने निर्देश दे दिया है मुख्य सचिव को कि जल्द से जल्द अगले 16 नवंबर से जो है स्कूलों को खोल दिया जाए। हमारी भी नज़र रहेगी, न्यूज़ टुडे की भी नज़र रहेगी कि स्कूल खुलने के बाद वर्तमान परिस्थिति उस वक्त की क्या होती है, किस तरह से, किस रोस्टर के माध्यम से, किस निर्देशिका के माध्यम से स्कूलें, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वापस चालू होती है, हमारी भी नज़र रहेगी। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट जानने के लिए आप लोग हमेशा न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी जो कोई खबर छोटी हो बड़ी हो आप लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हमारी जो खबर है, इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचे तभी वो फ़ायदेमंद होगी। यही हम लोगों के भी टारगेट है। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ प्रतिनिधि दीप्तो विश्वास, जब्बार अली के साथ मैं राजशाही इस्लामपुर से।